good morning to one and all. A good school turns your hobbies into passion, and a good college gives you a career out of it. With ever changing world, professions and their meanings are evolving. Creative minds opening new horizons every day. Once we have our destination, thousand ways of journey can be discovered. Today, to guide us, we have Mr. Ashish Goyal from the Mukta Academy, a NTSC scholar, a scholar in Maths Olympiad too. He has done BTech in CSE and has been teaching since 11 years. Vimukta prepares students for the ultimatum JEE or NEET and has given wonderful engineers and doctors to the world. Inviting Mr. Ashish to start the session. Yeah. Thanks a lot. Am I audible to everyone? Yes, we can hear you. Yeah, thank you. I'll just share my screen. Just a second. Okay. So is my screen visible to everyone? Yes, sir. Yeah. Great. Thank you. Okay. Fine. So I hope we have met earlier as well. Okay, my name is Ashish Goyal, and Sunaina has just given a small introduction. Okay, thanks a lot. So, just a few pointers about me, like whatever you are going to listen from me in the next half an hour or 45 minutes. So, let's try to make it a bit fruitful. And yes, this is my third venture. While doing engineering, I started my engineering in 2007. I did my schooling in 2006. I finished my 12th. And this is my third venture. My first venture being the Midbots, the next one being the OSA Hub. They were both technical ventures where we used to actually take workshops and every other things on robotics, cloud computing, and other domains. And after that, this is my third venture where we are basically dealing with the IIT JEE and NEET students as well as the CBSE students, trying to give this domain a bit of a new thing. जो चीज बहुत पहले से चीजें चलती आ रही हैं उन चीजों को थोड़ा सा चेंज कर कर बच्चों को एक बिट फ्रेश थिंग देने की कोशिश, अब एक तरीके से कुछ नया देने की कोशिश कि हाँ भाई चीजें कुछ अच्छे तरीके से आउटपुट निकल कर आ सके. ठीक है, विद द चेंजिंग demands of the students and demands of the society currently. So but basically putting that apart, we'll come to the main thing which we are basically over here for, a basic career counseling thing. So firstly let's start with a very basic thing जो आप सब जानते हैं. Like हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि try to learn from wherever you are stuck in life. ठीक, बेसिकली ठोकरों से सीखिए. बट यार एक बहुत बेसिक सी चीज, हम उन ठोकरों से क्यों सीखें या ऐसे वो ठोकर हम क्यों खाएं रादर जो दूसरे खा चुके हैं. रादर हम लोगों को अगर कोई ठोकर खानी ही है तो कोई ब्रांड न्यू खाओ ना, कि यार जो चीज किसी ने नहीं खाई, चलो जी आज हमने कुछ यूनिक ठोकर खाई है, चलो इससे हमें कुछ सीखने को मिला. बट अगर कोई चीज दूसरा कर चुका और वो उससे ठोकर खा चुका तो आप उससे भी तो सीखने की कोशिश करी. तो बेसिकली आज हम कंप्लीटली जो सारी चीजें पढ़ना चाहिए यहाँ पे देखना चाहेंगे. ठीक, तो बेसिकली हम सारे का सारा हमारा फोकस आज उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा रहेगा कि हाँ यार जो दूसरे लोग ठोकर खा चुके हैं, हाउ कैन वी लर्न फ्रॉम इट. ठीक, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जो आजकल लोगों के माइंड के अंदर घूम रही है, बट उससे कितनी बेटर हम आउटपुट निकाल सकते हैं. ठीक, एंड हाउ कैन वी लर्न फ्रॉम इट. सो इसीलिए आज हम लोगों ने अपनी इस चीज का नाम दिया है ब्रेकिंग द मिथ्स. ठीक, सम फैक्ट्स एंड सम मिथ्स टू कंपेयर, जो बहुत सारे आजकल बच्चों के दिमाग में घुस चुके हैं. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ करियर काउंसलिंग सेशंस गोइंग ऑन. सी, आई एम नॉट अ करियर काउंसलर. फर्स्टली, आई एम अ टीचर who is doing actually career counseling just to basically have a good like feel with the students कि हाँ यार हम और आप एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. बट मैं फिर बता दूं, मैं बहुत प्रॉपर करियर काउंसलिंग वाली लैंग्वेज यूज नहीं करता कि हाँ यार मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एक करियर के बारे में बता देना है या कुछ कर देना. नहीं, आई एम बेसिकली टेलिंग यू अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स इन लाइफ कि भाई करियर तो है ठीक, बट उसको प्रैक्टिकल में कैसे लेकर आएंगे आप लोग.
तो हम लोग बेसिकली उस चीज के बारे में थोड़ा डिटेल में आराम से बातचीत करेंगे. देन आई मतलब पुट ऑन द थिंग्स टू यू कि हाँ जी, इफ यू हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क मी और व्हाटएवर थिंग. ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग अपने सबसे पहली चीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं. ठीक है, द फर्स्ट मिथ, ठीक, विच स्टूडेंट्स हैव इन माइंड दीज डेज इज, सर डिफरेंट या यूनिक कोर्स कुछ करना है या डिफरेंट या यूनिक करना है लाइफ में, कैसे करें? ये डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, सीए, ये तो सब बन रहे हैं, हमें कुछ अलग करना है, हमें कुछ अलग बनना है. सर एक्सीलेंट थॉट. ठीक, हम अगर इस एज में आज की डेट में ये चीज सोच पा रहे हैं और हम इतनी चीज एक्चुअल में हमारे पास है, इट्स एन एक्सीलेंट थॉट. हमें कुछ अलग करना है. यस, बी डिफरेंट, बी यूनिक, बट द मेन पॉइंट इज बी योरसेल्फ, जिसका आप लोगों के पास एक्चुअल में आज की डेट में टाइम नहीं है. विद द actually increasing competition these days and actually every मतलब like a cat race is going on, right? तो बेसिकली हम लोगों के पास वो चीज का टाइम ही नहीं निकल रहा कि हाँ जी हम बी आर सेल्फ वाला फंडा निकाल कर लेकर आ सके. ठीक, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप आगे की लाइफ में हो, और वट एवर द थिंग इज. ठीक, सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज ये, सर ये मैं बी योर सेल्फ वाला फंडा निकालू कहां से? तो एक बात, सबसे पहली चीज, ठीक, क्या आपने कभी भी अपने करियर में घुसने से पहले, या आज की डेट में मेरे हिसाब से यहाँ पर सब साइंस स्टूडेंट्स हैं, ठीक, सो दे हैव थॉट ऑफ समथिंग कि हाँ हम अपनी लाइफ में ये करना चाहते हैं, और मेनी पीपल वो अभी भी थोड़े डाइसी होंगे, सर ये कर लें या ये नहीं करें, या हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं हम उनमें से कुछ कर लें. तो ये एक बहुत दुविधा में सारे बच्चे जी रहे होते हैं. एंड मेजरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आउट हियर, दे आर एक्चुअली इन सम काइंड ऑफ dilemma कि what shall we do or what shall we not do. ठीक, we have got lots and lots of streams in front of us, lots and lots of streams. सर बहुत लोग आ चुके हैं, हमें बहुत कुछ बता चुके हैं, इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि हम पागल हो जाते हैं सुन सुनकर. जाए कहाँ? हाँ, इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, ये तो सब कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा करना है सर, ये नहीं, कुछ अलग बताएंगे. अब मेरी एक छोटी सी बात समझिए, आप कुछ मर्जी करिए, द मेन पॉइंट इज हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? बी सक्सेसफुल. तो द मेन पॉइंट इज सक्सेस. अगर वो सक्सेस मेरे पास है, आई एम प्रीटी मच हैप्पी. अगर वो सक्सेस मेरे पास नहीं है, मैं परेशान हूँ जी, बहुत ज्यादा परेशान हूँ. सो मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, सीए, मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे सक्सेसफुल होना है. मुझे लाइफ में अपने आप को उस टॉप पोजीशन पर देखना है जहां पर I have a good name, I have a good fame, I have a good career, and whatever I am doing, I am pretty much happy with it. So, अब अगर ये वाली बात आती है तो देखो, अब देखो दो चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली यार. पहली बात, बी योरसेल्फ, मतलब मुझे अपने आप को सोचने की जरूरत है कि मैं किस चीज में अच्छा हूं. ठीक, मुझे क्या अच्छा लगता है, नहीं मैं किस चीज में अच्छा हूं. दूसरी बात कि सर सक्सेसफुल भी होना है. ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है, पहली बात, सर अब आप लोगों ने अगर देखा कि हाँ भाई मुझे ढूंढना है मैं किस में अच्छा हूं, तो यू नीड टू एक्चुअली सर्च फॉर ऑप्शंस. अब आपको ये कैसे मिलेंगे? स्कूल के अंदर आप लोगों के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज विद, मतलब लाइक आज की डेट में ये इतना बढ़िया एक बहुत बड़ा एक करियर काउंसलिंग फेयर चल रहा है, तो इसके थ्रू आपको बहुत सारी चीजें सुनने को, समझने को मिल रही है. दैट्स एक्सीलेंट. ठीक, बट हाँ सर, जैसे जैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा मुझे और भी चीजें देखने के लिए चाहिए कि मैं क्या चीज, देखो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन देखना इज नॉट द फाइनल थिंग. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मैं उस चीज के लिए अच्छा हूं, तो आई नीड टू एक्चुअली एक्सप्लोर दैट थिंग, आई नीड टू एक्सपीरियंस दैट थिंग. वो कैसे मिलेगी सर? वो मिलेगी आप लोगों को एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छी डिग्री और एक अच्छा कॉलेज. जहां आपको वो चीज मिल गई, यू आर डन. जब तक आपको वो नहीं मिलेगी, यू आर एक्चुअली इन अ बिट ऑफ अ बॉदर सिचुएशन. अब उधर अगर मिलनी है तो मैं क्या करूं भाई? बहुत बढ़िया चीज. अब आप अगर उस चीज के लिए सोचना चाहते हैं तो पहली चीज मुझे क्या रिक्वायर्ड है? आई नीड अ गुड कॉलेज. अब वो गुड कॉलेज क्या होता है सर? वो एक ऐसा कॉलेज होता है जहां से मुझे एक अच्छा एक्सपोजर मिल सके. मैं तो स्टड हूं, लेकिन मेरे आसपास वाले बच्चे मेरे से ज्यादा स्टड हैं, मेरे फैकल्टीज आर एक्सीलेंट. नाउ द पॉइंट, जब इतनी सारी चीजें, मैं ये 3 डोमेन्स अगर ढूंढना चाहता हूं, तो ये जो तीनों डोमेन्स हैं ये क्लासिफाई या क्वालिफाई सिर्फ एक अच्छा कॉलेज कराता है. रीजन बीइंग, सर अगर मेरे आसपास के बच्चे बहुत थोड़े ढीले होंगे, अगर मान लीजिए मेरे से भी ढीले होंगे, तो क्या होगा? मैं अपना लेवल कभी बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा. हम हमेशा अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश तब करते हैं जब हमारे आसपास वाले हमसे बेटर काम कर रहे होते हैं. तो मैं और ज्यादा काम करने की कोशिश करता हूं, मैं उनसे और ज्यादा आगे निकलने की कोशिश करता हूं, एंड इन दैट प्रोसेस
मेरा खुद का लेवल और ऊपर जाना शुरू हो जाता है। यही तो चीज देखनी है हमें। तो अब भाई सर बहुत बढ़िया, चलो हमने ये भी चीज समझ ली, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके लिए हम क्या करें सर? इसके लिए हमें ग्रेजुएशन एक ऐसी जगह से करने की जरूरत है जो मुझे पहली बात इन तीनों चीजों में क्लासिफाई मतलब क्वालिफाई करा सके, दूसरी बात थोड़ी जनरलाइज्ड हो, मैं बहुत स्पेसिफिक ना जाऊं, ठीक। एवरी ईयर आई हियर स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन सेइंग सर मुझे ना मतलब एक बेसिक मतलब एक यही वाली चीज करनी है यार। आई एग्री, आपने उसके बारे में देखा, आपने उसके बारे में सुना, बट यू हैवंट लिव्ड दैट लाइफ। थोड़ा सा पहले उसको अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करिए कि आप उसके लिए अच्छे हैं या नहीं है। इफ आई से आज की डेट में सर मैं तो गिटारिस्ट बनना चाहता हूँ, मैंने गिटार नहीं बनाया बजाया आज तक, मैं गिटारिस्ट बनना चाहता हूँ सर, बजा के तो देखो, पता चला 15 दिन के बाद तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा। दैट इज द थिंग कि मैं अपनी चीज के साथ कितना जी सकता हूं। तो मैं आपको तभी बता रहा हूं, मैंने आपसे शुरुआत में ही कही ना कि यार पहली बात होती है आई वॉन्ट टू बिकम दिस थिंग, दूसरी बात होती है क्या उस चीज के लिए मेरे पास पैशन है। ये दोनों चीजें जहां पर आप लोगों की मिल गई, दिस वर्ल्ड विल बी एंटायरली योर्स, 100% योर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अब अगर मैं अपनी बात करूं आपसे छोटी सी, सर 12th क्लास तक आए सीरियसली थॉट कि यार मैं लाइफ में जो भी करूंगा टीचिंग नहीं करूंगा यार, इससे ज्यादा बेकार काम ही नहीं होता कुछ, जो कुछ नहीं करता वो टीचर बन जाता है। जेन्युइनली दिस वाज द थिंग इनसाइड मी, ठीक। बट ग्रेजुअली ये मैंने चीजें देखी कि यार मतलब मेरे आसपास पहली बात ऐसे लोग हैं ही नहीं जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, देवर एक्चुअली द पीपल जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके थे, स्टिल देवर टीचर्स। दूसरी बात, मैं क्या चीज जो कर रहा था और मेरा जो पैशन निकल कर आ रहा था दैट वाज इन द स्ट्रीम ओनली। मैंने अपने आप को 3-4 साल का टाइम दिया, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, मैंने और चीजों में भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, एंड फाइनली आई केम टू दिस कंक्लूजन कि यार ये चीज मेरे लिए बेस्ट है। आई लेफ्ट माय जॉब दैट डे इटसेल्फ एंड आई स्टार्टेड एंटायरली इन दिस थिंग ओनली। मैंने बाकी सारी चीज साइड करी, नहीं यार और कुछ नहीं करना, यही करेंगे, यही मेरा पैशन है। आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेड विद मी अ लॉट, बिजनेस करना, जॉब करना, एवरीथिंग। आई डिड जॉब फॉर 3 years इन कंप्यूटर साइंस कॉर्पोरेशन एज वेल, सब कुछ करने की कोशिश करी। फिर जिस दिन एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि यस दिस इज माई थिंग, डू इट। यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये आप लोगों को देखने के लिए, सोचने के लिए समय चाहिए, एंड सिर्फ समय नहीं चाहिए, आप लोगों को अपने साथ एक ब्रांडिंग चाहिए। इफ यू हैव अ ब्रांड विद यू, यू हैव अ वर्थ, ठीक। सो तो देखो बेसिकली मैं आप लोगों से जो बात कह रहा हूं ना सर, हमें डिफरेंट होना है, यूनिक। अरे डिफरेंट एंड यूनिक होइए किस चीज के अंदर? अपने एफर्ट्स के अंदर। सर मेरे से ज्यादा एफर्ट कोई नहीं लगाता, मैं इतना एफर्ट लगाता हूं कि मतलब बस मजेदारी वाली बात आ जाती है, एकदम फर्स्ट क्लास चीजें निकल कर आती हैं, ठीक। तो ये जो चीज है जिस दिन आप लोगों के अंदर आ गई, आपका एफर्ट एकदम आपका डबल हो चुका है, सर बहुत बढ़िया तरीके से मैं काम कर सकता हूं, मैं कर पा रहा हूं, आप लाइफ में ऊपर ही ऊपर चढ़ेंगे जी, कभी नीचे नहीं देखेंगे, कभी भी नीचे पीछे मुड़कर ही नहीं देखेंगे, ठीक। अब देखो दूसरी बात आते हैं इस पर, एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी डिग्री आप लोगों को क्या दिला सकता है? अब देखो जी बहुत बेसिक सी चीज, सर एक अच्छा कॉलेज या एक अच्छी डिग्री, ठीक, मुझे लाइफ में प्रेफरेंस दिलवाता है। आप लाइफ में क्या करेंगे, ठीक, आइदर यू विल डू अ जॉब और यू विल डू योर बिजनेस, ठीक। चलिए जी सर, अगर जॉब चाहिए मुझे, ऑब्वियसली बात है, आई नीड अ गुड डिग्री, आई नीड अ गुड कॉलेज फॉर दैट, ठीक। रीजन सर मुझे अच्छी एजुकेशन भी चाहिए, ठीक, मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर भी चाहिए, प्लस मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। जब मुझे ये सब चीजें मिलेंगी तो मुझे एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। नेक्स्टली जब हम बात करते हैं कि सर मैं अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता हूं, फर्स्टली आई मस्ट टेल यू पीपल, सर बहुत अच्छे कॉलेजेस के अंदर ही बच्चे अपने खुद के स्टार्टअप्स करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। इट्स नॉट दैट इजी। जब भी आप कोई चीज का स्टार्टअप करना चाहते हैं, आज की डेट में एक बहुत हॉट प्रोफेशन है, आई वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर। अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं तो सर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मेरे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पहली बात, आई नीड अ गुड आइडिया, दूसरी बात आई नीड अ गुड ब्रांड। आइडिया मुझे आगे लेकर जाएगा, ठीक, लेकिन ब्रांड, जो ये ब्रांड मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये ब्रांड मुझे इन्वेस्टमेंट्स दिलवाएगा। आप सब आज की डेट में बायजूस के बारे में सुनते हैं और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके बारे में आप लोग सुनते हैं, ठीक। सर इन लोगों के पास अगर आप चेक करिए दो चीजें, बायजू हाउ मतलब आप इनकी कभी सर्च करके देखिए बंदे फेमस कैसे हुए हैं।
दैट वाज ऑल फ्रॉम देयर इनिशियल एफर्ट्स इन देयर स्टडीज। उसके बाद ही तो आगे करके कुछ काम करा इन लोगों ने। सो द पॉइंट वाज कि यार क्या हम अपने आप में इतना बढ़िया काम कर पा रहे हैं ताकि हम उस लेवल तक पहुंच सके। जब आप पहुंच पाएंगे तभी तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये जो चीजें मैं आप लोगों को बोल रहा हूं इन अ नटशेल, प्लीज इनको समझिए। जब तक आप इन चीजों के ऊपर अपने आप को क्वालिफाई कराने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो जो बच्चे आज तक मेहनत से भागे हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए जी, ये बात मान के चलेगा हमेशा। आज की डेट में हम हर साल हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते, सर आईआईटी नहीं करना, डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना। मैं सबसे पहली बात उनसे कहता हूँ, पहली बात क्या करना है? सर ये नहीं पता अभी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अगर तुम्हें ये बात नहीं पता तो इस ना पता होने के भी दो कारण। पहली चीज कि सर पता नहीं, मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, अभी मैंने फिगर आउट नहीं करा। कब करेंगे जी? उस फिगर आउट करने के लिए भी तो आप लोगों को बेसिकली क्या चाहिए? आप लोगों को एक एक्सपोजर चाहिए, जो अगेन फिर हमने जो पहले बात करी उसी के ऊपर सारा चला गया। दूसरी चीज, अब अगर हम ये चीज सब, नहीं सर मेरे को एक्सपोजर वगैरह की हेडेक नहीं है, अब पॉइंट क्या है? सर पॉइंट है मेहनत, मैं मेहनत नहीं करना चाहता। बिना मेहनत करे आप कुछ मर्जी दिला दो, आई विल बी प्रीटी मच फाइन, बट मैं मेहनत नहीं करना चाहता। बिना मेहनत, बट यार क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि बिना मेहनत करे एक इंसान ऊपर तक पहुंच गया? अंबानीज एंड टाटाज एंड बिरलाज एंड को चलो ये तो बहुत ऊपर लेवल के लोग हो गए, क्या एक बेसिक जो एक अच्छी पोजीशन वाला इंसान है क्या वो बिना मेहनत के पहुंचा है वहां पर? नहीं। वंस एक बच्चे ने मेरे से कहा, सर बिल गेट्स कहता है कि ना आई वांट टू हायर लेजी पीपल, क्योंकि वो शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं हर चीज के लिए। अरे स्टिल वो आईआईटीज में जाता है प्लेसमेंट करने के लिए, वो किसी ढीले कॉलेजेस में नहीं जाता प्लेसमेंट करने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों भाई? वो सारे बच्चे लेजी हैं? अगर वो इतने लेजी होते तो वो आईआईटी में पहुंचे कैसे होते? जस्ट थिंक अबाउट इट। इतने लेजी लोग इतने टॉप कॉलेजेस के अंदर नहीं पहुंचते। दे मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड। अपने नाम के आगे ये आईआईटीएन वर्ड लगाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है जी। अ डॉक्टर फ्रॉम एम्स, वो अपने आप ही डिफरेंट आ जाती थी, एम्सोनियन दे आर सेड। ठीक, आईआईटीएंस द इंजीनियर। तो मैं आपसे देखो, मैं फिर आपसे कहता हूँ यार बेसिकली क्या है, इधर भीड़ है। भीड़ कहाँ होती है? सर भीड़ वही होती है जहां डिमांड होती है। ठीक, आप लोगों ने सबने सुना होगा डिमांड एंड सप्लाई का एक फंडा चलता है जी। ठीक, सो डिमांड है इसीलिए तो इतनी सारी सप्लाई है। आप यूनिक करना चाहते हैं, आप डिफरेंट करना चाहते हैं, करिए, बट पहले एक्सप्लोर तो करिए। जिस दिन आप लोगों को वो चीज मिल गई, गो एड विद इट। क्या सारे के सारे आईआईटीएंस और डॉक्टर्स क्या सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के अंदर है? नहीं है जी। आज की डेट में डॉक्टर्स भी एमबीए करते हैं टू मैनेज द थिंग्स। आप बहुत सारे डॉक्टर्स को अभी रिसेंट में देख चुके होंगे। आज की डेट में डॉक्टर्स एमबीबीएस करने के बाद फॉरेंसिक्स में भी जाते हैं। स्ट्रीम्स है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। सो द पॉइंट इज, सर पहली चीज क्या होनी चाहिए मेरी? माय फर्स्ट स्टेप शुड बी अ जनरलाइज्ड वन, द मोस्ट जनरल स्टेप विच आई कैन टेक। जब आप लोग इतना कर लेंगे, मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूं, आप लोग लाइफ में बहुत ऊपर जाएंगे। अभी आप जहां पर हैं, ट्राई टू एक्सेल इन दैट। मेहनत से मत भागो। इन दीज 2 years वट एवर यू कैन अचीव विद द काइंड ऑफ एफर्ट्स यू कैन पुट इन, उसके बाद इस चीज को अचीव करने के लिए इतनी मेहनत कई सालों तक लगानी पड़ेगी। तो अगर हम अभी ये काम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट? गो एड विद इट। डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि हाँ सर मुझे एफर्ट कम में बहुत कुछ पा लेना है। नहीं जी, वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। एक डिग्री मुझे प्रेफरेंस दिलाती है एंड आई नीड दैट थिंग। आप कहीं जाकर कभी आप लोगों ने अगर कभी एंटरप्रेन्योरशिप में सुना हो कि वी नीड इन्वेस्टमेंट्स, सर इन्वेस्टमेंट के अंदर इंसान की प्रोफाइल देखी जाती है जी। वो प्रोफाइल बनती कहां से है? सर वो प्रोफाइल आपकी सबसे पहली प्रोफाइल आपके कॉलेज से बनेगी 100%। अब वो बेसिकली यही होगा। अब मान लीजिए अगर एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पास 100 प्रोफाइल्स आई, सर मैं किसको फंड करूं? अब वो अगर 100 के 100 आइडियाज पढ़ना शुरू कर देगा तो वो पागल हो जाएगा, नहीं पढ़ सकता इतने। तो वो बेसिकली क्या करेगा? सबसे पहली चीज, सबसे पहले वो शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। यार एक काम कर, इसके अंदर से ना जो टॉप कॉलेज वाले बच्चे उनको साइड कर, बाकियों को बाकी की बाद में देखेंगे, जब समय मिलेगा ना तब इनको पढ़ के देखेंगे जी। ये पहली सेग्रीगेशन हो जाती है जी। अब अगर आप चाहते हैं कि आप उस सेग्रीगेशन के अंदर क्वालिफाई करें, सर एफर्ट तो यही लगाना पड़ेगा।
अब वो एफर्ट के लिए सर मेरी 11th खराब हो गई है, मैंने कुछ खास मेहनत ही नहीं करी, मैं तो कोरोना के चक्कर में घर ही बैठा रह गया बस, या मेरी 12th चल रही थी, मैंने अभी तक कुछ नहीं करा, बट यू स्टिल हैव टाइम। इवन 12th के बच्चे सर बोर्ड इस साल कुछ तो डिले होंगे, ये तो कंफर्म्ड है। जेई 2 बार होता है, नीट में अभी बहुत समय है, करके तो देखिए। अब बहुत बच्चे आते सर कहते सर हमें ना बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर लेंगे यार। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये जो कॉलेजेस के अंदर होती है बहुत अच्छे कोर्सेज है, टीचर्स भी बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छे, बट मुझे एक चीज बताइए ना, आपको क्या पहली प्रेफरेंस बीएससी इन कंप्यूटर साइंस से पहले आप बीएससी या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस को नहीं दे सकते? जो एक बेटर और प्रोग्राम निकल कर आएगा, इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री। बीएससी के बाद आप एमएससी भी करने की कोशिश करेंगे, दैट बिकम्स अ 5 ईयर थिंग। यहां पर आप 4 साल के अंदर यू पीपल विल बी प्रिटी मच बेटर इक्विप्ड। एंड करना क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक, तो देखो आई होप जो मैं अभी तक चीज समझाना चाहता हूं मैं तुम लोगों को कुछ समझा पाया हूं। ठीक, तो देखिए, तो ये मेरा सबसे पहली चीज थी, तो बी यूनिक, बी डिफरेंट, बट इन योर एफर्ट्स। काम करिए, अच्छा काम करिए, अच्छी मेहनत करिए, अच्छे एफर्ट्स डालिए। जब आप ये सब कर पाएंगे, आप लाइफ में अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ऊपर पाएंगे जी, सिर्फ और सिर्फ। सच्ची मेहनत करने वाले जिक्र नहीं करते, फिक्र करते हैं। किस चीज की? अपने करियर की, और बस वही करना है। ठीक, चले जी, आइए देखिए, तो देखो दूसरी चीज में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये फोटोग्राफ लगाने का ना मेरा एक बड़ा बेसिक सा फंडा था। यूजुअली जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं ना यार कि क्या हो रहा है, ठीक है सर मैं या तो सीबीएसई करूं या 11th 12th करूं, मतलब जेई की तैयारी या नीट की तैयारी करूं, और आई शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई। यहां आकर डिलेमा शुरू होता है बच्चों का। ठीक, अब भाई ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहली बातचीत इसके बारे में 11th 12th की बिगनिंग में भी करी है। अब बट सर हमारा इतना समय जा चुका, अब हम क्या कर सकते हैं इन चीजों के लिए? अब आप लोग जो यहाँ पर कर सकते हैं, दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं आज से ही अपना एक प्लानर बनाऊं। फिर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, उस पढ़ाई के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, एक प्रॉपर फ्लो चाहिए। जब मुझे वो स्ट्रैटेजी, वो फ्लो मिल जाएगा, मैं उस दिन अपना काम कर पाऊंगा। बट मेजरली अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, अरे कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, लेकिन पता नहीं क्या बच गया। मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी नहीं, मेरे को मैथ्स अच्छी लगती है, मैं 24 घंटे मैथ्स पढ़ लेता हूँ। एक हफ्ता सर मैंने सोचा अभी मैथ्स पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जब बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने का समय आया, अब सर मतलब मैथ्स में फ्लो बन गया, वही करेंगे, चलो जी थोड़ी सी और सही, पता चला जी हमने बाकी सब्जेक्ट्स को समय ही नहीं दिया। ठीक, आप सोचिए अगर आज की डेट में अगर आप टीचर हैं, आपकी क्लास के अंदर 3 बच्चे हैं, एक का नाम फिजिक्स, एक का नाम केमिस्ट्री, एक का नाम मैथ्स, चलो चौथे का नाम बायोलॉजी। सर ये मेरी क्लास का एक बच्चा है जो मेरी क्लास का बच्चा ना ढीला है, ठीक, ये बच्चा है जो बहुत अच्छा है, ये एवरेज है। ठीक है ना भाई, ऑब्वियसली मैं मैथ्स और बायो में से एक ही लेकर चलता हूँ, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब ये बात आती है सर, जो बच्चा मेरा सबसे बढ़िया काम कर रहा है, मुझे उसको क्या करना है? मुझे उसको सिर्फ मोटिवेट करना है, वो काम कर जाएगा। कहने का मतलब क्या था, उसके ऊपर ध्यान रखना है, लेकिन मुझे उसको भयंकर कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। मेनली मुझे किन को देखना है सर? जो बच्चा मेरा ठीक ठाक काम कर रहा था और जो मेरा ढीला था, क्योंकि अगर आपने इन दोनों को नहीं देखा तो ये डूब जाएंगे बच्चे। यही तो चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, खुद की पढ़ाई करते हुए भी। जो मेरा सबसे ढीला बच्चा है उसको पकड़ के रखो। हम उल्टा करते हैं, हम अपने सबसे बढ़िया वाले बच्चे को पकड़ के रखते हैं, और जो ढीले होते हैं उनको भाई कोई नहीं, तो कुछ मर्जी कर ले, कोई टेंशन नहीं। यही तो चीज हमें पकड़नी है। जहां आपने ये चीजें पकड़ ली, आपका काम हो गया जी। जिस दिन आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, वहीं उसी दिन आप लोग सक्सेसफुल हो गए जी, वहीं उसी दिन आपको इससे आगे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सीबीएसई एंड एंट्रेंस आर नो टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दे आर सेम थिंग्स। इट्स जस्ट दैट आपको पहले अपना सीबीएसई कवर करना है, उसके बाद एक अगले लेवल पर जाना है। उसके लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट। नीट के लिए आज की डेट में थोड़ी सी कट ऑफ हाई जा रही हैं, थोड़ा सा एफर्ट्स अलग लेवल के चाहिए। बेसिकली वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। जेई के अंदर सर इतनी बात ही नहीं है, सिर्फ अगर आप स्ट्रैटेजी अगर आप प्रॉपर करें, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप अच्छे कॉलेज में पहुंचे बिना बात ही नहीं करेंगे जी। हाँ, मैं ये नहीं कहता हर बच्चा आईआईटीएन बन सकता है, लेकिन हाँ, क्या मेरे पास एनआईटीज, डीटीयू, एनएसआईटीज, ट्रिपल आईटीज, इतने सारे कॉलेजेस भी अवेलेबल हैं जहां पर मैं जा सकता हूँ बिट्स? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं जी, जाइए, लेकिन उतना एफर्ट तो डालिए। कल की डेट में अगर मैं सक्सेसफुल नहीं भी हो पाया, क्या मैं अपनी शक्ल देखकर ये कह सकता हूं कि यार मैंने इतना काम तो किया था, आगे जो भगवान तेरी इच्छा?
मैं अपने 90% कह सकता हूँ गारंटी से, 12th के बाद मेजर बच्चा ये बात अपनी शक्ल देखकर बता सकता है कि हाँ यार मैंने मेहनत करी थी या नहीं करी थी. This is actually the thing which is required. Can you face yourself and say, yes, I did my best? Now, whatever happens, that's my luck. अगर आप इतनी बात कह सकते हैं अपने आप को, I can assure you, you are actually on the right path because you have worked very hard. Not every person becomes IITian and becomes successful, but yes, the probability increases. The probability increases. सर मेरे साथ में पड़ोसी जो है सर वो कुछ नहीं करता, मतलब इंजीनियर है. अरे भाई, हर इंजीनियर, हर डॉक्टर, हर एमबीए, हर सीए सक्सेसफुल नहीं होता. उसके लिए एफर्ट मारने पड़ते हैं. आप उसने एफर्ट मारेंगे, आप उतने लेवल पर पहुंचेंगे, आप भी सक्सेसफुल होंगे. हर इंसान नहीं होता जी. हाँ, लेकिन भाई यू हैव टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स. यस, आप अलग भी करेंगे यहां पर, बट द पॉइंट इज पहले अपने साथ वो एक ब्रांड नेम तो लाइए कि दुनिया आपको सुने समझे. जिस दिन ऐसा हो गया, यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. मैं अभी भी बोल रहा हूं, आपकी 11th आधी हुई है, बहुत समय बचा है. आपकी 12th वालों के लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जेई एंड नीट आर अ बिट अवे. आपने आज काम कर लिया, आप जिंदगी भर याद रखेंगे यार बढ़िया. मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, वी सी, मैं आपको फिर शुरुआत में ही बोला था ना, आई एम नॉट अ काउंसलर, आई एम मेजरली अ टीचर हु काउंसिल स्टूडेंट. तो बेसिकली मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता हूं. नाउ इवन इन द लास्ट ईयर ऑफ टीचिंग मेनी स्टूडेंट्स वर देयर, सर मतलब इंजीनियर वगैरह नहीं, हम कुछ और करना चाहते हैं. आज की डेट में वो सारे इंजीनियरिंग फील्ड में चले गए हैं, सब चले गए. रीजन भी, सर जब मुझे दिख रहा है कि मुझे एक दूसरा ऑप्शन मिल रहा है और उससे बेटर ऑप्शन यहां मिल रहा है, तो वो बच्चा यहां चला जाता है. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, जब तक उसको रियलाइजेशन हुई, फिर उसके बाद वो एक ढीले कॉलेज में ही गया. वो अच्छे कॉलेज, क्योंकि उसने इतनी मेहनत ही नहीं करी, तो फिर ऑब्वियसली वो अच्छे कॉलेज उसको मिल कैसे सकता था. सो इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, योर टाइम इज नॉट अप, इट हैज स्टार्टेड. जब आप सोच लेंगे, आप वहीं से जीतना शुरू करेंगे. हमने सर अभी तक कुछ नहीं करा, हमने अभी तक कुछ, अरे डजंट मैटर. क्या आप आज जाग सकते हैं? सर कोविड की सिचुएशन है, इतनी प्रॉब्लम सिचुएशन है, हम क्या करें? आपने अपने टीचर्स को देखा है कभी? 95% of the teachers haven't taught online before this situation. Even they are trying to evolve. क्या उन्होंने आपकी क्लासेस लेनी बंद कर दी? रादर मेरे हिसाब से आज की डेट में ज्यादा ले रहे हैं. बहुत इफेक्टिवली आपको चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं. सबको अच्छा लगता है बाहर निकलकर काम करना, स्कूल्स में जाना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, सामने देखकर करना. हमारे सेशन की भी फील अलग आती है हमें. आज की डेट में हम घर बैठे हैं, हम यहीं से सब काम करें, बट यार हम पीछे नहीं हटना चाहते. मे व्हाट हैपन, मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूं, आपके आसपास जितने टीचर्स, जितने फैकल्टीज है, दे आर वर्किंग डे नाइट कि हम इस चीज में भी, और आज की डेट में वो एक्सेल कर चुके. दे हैव इवॉल्व्ड एवरीथिंग, एवरी वर्स अपॉर्चुनिटी, मतलब एवरी वर्स सिचुएशन दे हैड. आप क्यों नहीं कर सकते? You people are in such a age where it's easier to evolve, but majorly the problem is, sir, कम एफर्ट में ज्यादा मिल जाए. आई एम सीरियसली वेरी सॉरी, ऐसा तो नहीं पॉसिबल. आप आज नहीं करेंगे, आप कल करेंगे, आप कल नहीं करेंगे, आप परसों करेंगे. बिना मेहनत के तो किसी को नहीं मिला जी. बिना मेहनत के हर इंसान, हर एक चीज, बहुत ज्यादा पैसा भी अगर मैं आपको दे दूंगा एंड स्टिल यू डोंट वर्क हार्ड, यू वोंट बी एबल टू सस्टेन. दैट मनी विल बी गॉन like this. So the point is, क्या मैं काम करने की हिम्मत रखता हूं? जब आप ये कर पाएंगे, sky is the limit. हाँ जी, क्या ओनली सीबीएसई इज गोइंग टू हेल्प मी आउट? सर थोड़ा सा आज की डेट में ना प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस है इन सीबीएसई. इट्स जस्ट दैट सर मेरे 100 आए हैं, दूसरे के भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जितनी एफर्ट 97-98% लाने के लिए यहां लगाएंगे, मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूं, आप इतना एफर्ट थोड़ा सा, अगर मेरे से 97 और ये भी 97 जाएंगे नहीं, स्टिल अगर मैं यहां पर जरा सा हल्का सा अपने एफर्ट को जेई नीट की तरफ भी मोड़ दूं, सर लाइफ में चीजें अलग दिखेंगी. आई गारंटी यू, आई अश्योर यू. अलग कीजिएगा, बट एक बार पहले अपने आप के लिए ब्रांड तो बनाइए. देखिए तो सही कि मैं उस अलग को कर सकता था या नहीं कर सकता था.
मेनी स्ट्रीम्स आर देयर आफ्टर 12th जिसके अंदर बच्चा शुरुआत से अगर सोच चुका है तो वहां जा सकता है, हाँ सर पायलट बनना चाहता हूं मैं, ये करना। जस्ट प्लीज, मैं इन चीजों के बारे में बात क्यों करता हूँ, मैं बेसिकली इन चीजों के बारे में बात उन दो लोगों के लिए ज्यादा करता हूँ। पहली बात, विच आर अनडिसाइडेड अबाउट देयर करियर्स। दूसरी बात, ठीक है, जो इन स्ट्रीम्स के अंदर अपने आप को सोच चुके, सर द नेक्स्ट आईआईटीएन विल बी, द नेक्स्ट डॉक्टर विल बी, वो इसके बारे में बात ही नहीं, इसके अलावा बात ही नहीं करते। सर सोच लिया, और सोच लिया तो कर कर निकलेंगे। We have got full determination in ourselves, मतलब we are not going to back off, we are not going to back off. But majorly मैं आपको तो मेजरली बच्चे क्या करते हैं ऐसे, मैं जैसे एक गांव था, ठीक है, वहां पर मतलब बेसिकली क्या था कि लोगों को पानी चाहिए था, ठीक है, और पानी खत्म हो गया था, तो उनको था कि जी कुआं खोदेंगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। व्हाट हैपेंड कि सर एक इंसान आया, मतलब गांव वालों ने कहा यार तू इधर एक काम कर, इधर कुआं खोदते। उसने 5-7 फुट गड्ढा खोदा, कुछ नहीं, कह रहे यहाँ नहीं आएगा पानी, छोड़ यार। दूसरा कह रहा नहीं यार उधर कोने में खोद देख, उधर थोड़ा सा ना है, मतलब कुछ मुझे ऐसा फील आ रही है उधर आएगा। उसने उसको छोड़ दिया, वो दूसरी जगह कुआं खोदने चला गया। फिर वहां पर 5-7 गड्ढा खोद का, 5-7 फुट का, यार यहाँ तो कुछ नहीं निकल रहा, यहाँ नहीं करेंगे यार, छोड़। दूसरी जगह, मतलब दूसरे इंसान कह रहा है यार तुम्हें मैंने पहले कहा था ना यहाँ नहीं, दूसरी जगह खोद, वो देख वहां पे भगवान का हिसाब किताब है थोड़ा, भगवान वहां पर, अरे भगवान तो हर जगह बैठे भाई, वहां पे स्पेशल क्या है। कह रहे तू खोद तो सही, मिल जाएगा पानी। उसने फिर खोद डाला, 5-7 फुट खोदा। अब आप एक चीज सोचो, ऑलमोस्ट 15 to 20 फुट वो खोद चुका, अलग अलग जगह पर। अब ये सोचो अगर उसने एक ही जगह पर इतना सारा खोद डाला होता तो पानी निकल आया होता। ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी होती है जी। हम कुछ दिन सर ये करेंगे, अच्छा लग रहा है, अरे नहीं नहीं छोड़ यार, ये मजा नहीं आ रहा है, इसमें क्लिक नहीं आ रहा है, ये करेंगे, अरे अच्छा यार ये बड़े बढ़िया जी, ये करेंगे। फिर थोड़े दिन में जोश ठंडा, अरे नहीं यार छोड़, ये करेंगे यार। सर एक चीज पे एफर्ट लगा दीजिए ना, ये जो एक्सप्लोरिंग करनी है ये अभी समय नहीं है। इन चीजों को एक्सप्लोर या तो आप अपने आप में शुरुआत से लाइफ में कर रहे हैं, अदरवाइज सर ग्रेजुएशन में करना ना, एक जगह पहुंच तो जाओ, क्योंकि अगर ये समय निकल गया फिर उसका कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। वी ऑल नो दैट टाइम इज जस्ट लाइक सैंड, आप हाथ में पकड़ने की कोशिश भी करेंगे तो निकल जाएगा जी। सो अभी हम लोगों को ये चीज देखने की, सोचने की, समझने की रिक्वायरमेंट है। डज इंजीनियर और डॉक्टर इज एवरीथिंग? नहीं सर, मैं बिल्कुल कह ही नहीं रहा, मैं क्या कह रहा हूं, सक्सेसफुल होना है जी, एंड दैट इज द निश थिंग। सिर्फ मेरा सारे सारे पॉइंटर्स उधर की तरफ जाने चाहिए, जहां मेरी लाइफ में सारे पॉइंटर्स उधर की तरफ चले गए, आई विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। तो अब इन सब चीजों के लिए एक क्लास में मैं आप लोगों को छोटी सी, एक आध छोटी मोटी, भाई थोड़ा अपनी पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए एक आध छोटी मोटी टिप्स देना चाहूंगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को जितना बताने की कोशिश करी, शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आई हो, ठीक। इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन आर अ फ्यू वेरी फेमस पीपल, ठीक। इनमें से सब के सब आप, काफी लोगों को शायद इनमें से आप लोगों ने देखा हो, ठीक है। दे हैव जस्ट वन थिंग इन कॉमन, इन सबके सेट का एक ही इंटरसेक्शन है, एंड दैट इज दे आर ऑल आईआईटीएंस, ठीक। नंदन निलेकनी, रघुराम राजन, सचिन बंसल, दीपांशु गोयल, मनोहर परिकर, many, the list goes on. It's not like that they all are IT people, but it was, वो जो भी कर रहे थे, they were trying to be the best in their fields. ये चीज आप लोगों को सोचनी है जी। जहां आपने ये कर दी, स्काई इज द लिमिट। अगर आप लोग यहाँ पर लास्ट इमेज देख पा रहे हो, थोड़ी सी छोटी है, मैं इसको बड़ा नहीं कर पाया, थोड़ा जूम करने पर फट रही थी, ठीक। Two very famous people. One is Gaurang Prabhu. The other you all know, the CEO of Google right now. These both are from the same batch of IIT. One is actually doing excellent in Google and every other thing. The other is trying to search God each and everywhere. Both are extremely successful in whatever things they are doing. तो मैं आपको बार बार जो चीज बता रहा हूँ, क्या सर इनको अब एक चीज मुझे बताइए, आप आज की डेट में सर मेरे को अगर किसी को फॉलो भी करना है, अरे खुद इतना पढ़ा लिखा है, इस स्ट्रीम में है, अरे गजब, कुछ तो इसको ज्यादा पता होगा यार,
ये आउटपुट अपने अंदर से जब आप लोग, आप भी करोगे यार, मैं क्या, पूरी दुनिया क्या, आप भी करेंगे, ये तो पार्शियलिटी अपने आप आ जाती है इंसान के अंदर। यही तो हमें चीज देखनी है कि ये पार्शियलिटी लोग हमारे साथ भी करें। जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा, वहीं आप लोगों की जिंदगी एक अलग लेवल पर जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चले जी। एनीवेज, जस्ट एक आध छोटी मोटी चीजें, ठीक है, आई जस्ट टेल यू पीपल कि हाँ भाई, जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए एक आध छोटी मोटी टिप्स आप लोगों के पास बहुत सारी हैं। ठीक, मेनी पीपल विल बी हियर टू गिव यू सम एक्सीलेंट टिप्स, डू लिसन टू ईच एंड एवरी वन। ठीक, ज्ञान बट रहा है, पकड़ लो, जितना बटोर लोगे उतना बढ़िया। ठीक, चले जी। एनीवे, देखो सबसे पहली एक छोटी सी चीज, ठीक, बहुत सारे बच्चों के साथ क्या चीज होती है, आई टेल यू कि यार हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक आया, हमने बहुत डिटेल में पढ़ डाला, टीचर ने समझाया, हमें समझ में आ गया, हमने नोट्स नहीं बनाए। जो आज की डेट में ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, सर नोट्स नहीं बनाए, उसके बाद उसको पढ़ा नहीं, जब पेपर आया उठाया, अब पता चला तो टॉपिक ही नहीं आता, फिर हमने किताब उठाई, यार ये किताब उठा ले, ये कर ले, वो कर ले, चल इस चैप्टर को करने की कोशिश करते हैं। बट आई मस्ट टेल यू, देखो एक टीचर का पढ़ाई हुई चीज आपके दिमाग में 2-3 दिन तक रहती है, बहुत अच्छे से रहती है, उसके बाद वो थोड़ी ऑमिट होनी शुरू होती है। उस चीज को जगाए रखने का एक तरीका क्या होता है, नोट्स। सर टीचर हिंदी में भी बोल रहा है या क्लास में जो भी कर रहा है उसको नोट करिए। जहां आपने ये छोटे छोटे पॉइंटर्स टीचर के नोट करने शुरू कर दिए, आपकी कॉपी ऐसा लगेगा कि वो टीचर निकल कर आ गया जी आपके सामने। यही तो चाहिए, और चाहिए क्या, जहां ये चीजें आप लोगों को मिल गई वहीं पर आप लोगों का काम हो जाएगा जी। तो ये चीज आप लोगों ने देखनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। नोट्स बनाने हैं, बहुत प्रॉपरली बनाने हैं। अगर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, और अगर आप अपने अच्छे से नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है जी। एंड मैं एक्चुअली कहता हूँ इसको बहुत सुंदर बनाइए, यूज 3-4 डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन्स, यूज हाइलाइटर्स, यूज एवरीथिंग। आप ये सोचिए, आपको इस कॉपी को सिर्फ अभी नहीं पढ़ना, पढ़ के फेंकना नहीं, आपको इस कॉपी को अपने साथ संभाल के रखना है एटलीस्ट फॉर अ ईयर और 2। आप जब इसको बाद में उठाएं रिवाइज करने के लिए, कुछ अच्छी दिखनी चाहिए, उसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। वी लाइक टू रीड कलरफुल बुक्स, ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स में सबको मजा नहीं आता, तो ये आप अपने नोट्स के साथ भी तो रखिए। हर जो एक्सरसाइज आप करते हैं उसके सॉल्यूशंस बनाइए, साथ में स्टेपल करके डालिए, फोल्डर्स बनाइए। दीज थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आप लोगों ने बचपन में एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, कछुए की और रैबिट की। ठीक, सो भाई सबको पता है कि हाँ भाई सर रैबिट बहुत तेज भागा, आगे जाके सो गया, कछुआ चलता गया चलता गया चलता गया, एंड तक पहुंच गया। सर आज की डेट में ये कहानी ना थोड़ी इररेलेवेंट हो चुकी। आज की डेट में यू कांट बी अ रैबिट एंड यू कांट बी जस्ट अ टॉर्टोइस, यू एक्चुअली नीड टू बी बोथ। यू नीड द स्पीड ऑफ द रैबिट बट यू नीड द कंसिस्टेंसी ऑफ द टॉर्टोइस। जहां आपने इन दोनों चीजों को क्लब कर दिया, सर पढ़ाई की फील अलग आएगी, बिल्कुल अलग आएगी। मोटिवेशन ऐसे ही जागती हैं जी, जब आपके सामने आपका करियर आपको दिख रहा है, आप मोटिवेट होंगे, और उसके अलावा आपके टीचर्स बैठे हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। बट हाँ, थोड़े सेल्फ मोटिवेशन तो चाहिए, रात को लेट तक पढ़ने के लिए या सुबह जल्दी उठने के लिए, उस कोजी रजाई में से निकलकर बाहर आने के लिए, वो तो चाहिए। वो कैसे आएगी सर, वो अपनी सेल्फ मोटिवेशन कैसे, करियर देखकर। और सिर्फ करियर नहीं सर, आई वांट टू बी अ वेरी 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 सक्सेसफुल पर्सन, एंड अगर वो करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा जी लाइफ में। ठीक, ओके, सो I'll wrap up over here. If any one of you have got any questions to ask, any doubts, if you people have, you can just ask me. And if you people want to contact me for any assistance, any advice, any other thing, take, you have my contact details as well, my email ID, my phone number. This phone number is available on WhatsApp as well. If you have any kind of issue, you can anytime contact me. Any time. You don't need to think कि सर मैं आपसे पढ़ता हूँ, मैं आपसे नहीं पढ़ता हूँ, आप DAV में पढ़ते हैं जी, and we have this thing in intersection. ठीक, so if you have got any kind of doubt, any time, you can always ask me. हाँ जी, yes please, if anyone wants to ask any question, please go ahead. Yeah. Good morning, sir. Morning जी. I'm a class 12th student currently. Yeah. सर एक्चुअली मतलब कि अभी जैसे कि हमारा मतलब जेई मेंस ऑलमोस्ट मतलब नज़दीक है, बिल्कुल तो सर। वो कुछ लोग अभी मतलब कि जैसे 1 वीक पहले किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि अभी आप फिजिक्स के लैब सेंगेज उठाइए, लेकिन सर अब मतलब कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि
I have been doing my modules, all my coaching modules, and many other sources from last 2 years, and now just before 2 or 3 months. So how can I start with some very new book which I haven't even read for a single time for the last 2 years? So that Uh, becomes quite a doubt. नहीं यार देख, मैं एक छोटी सी चीज कहूंगा, देख बदलना नहीं है जबरदस्ती। देख जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, सबसे पहली बात एक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जहां पर पढ़ रहे हो वहां के टीचर्स पर और वहां के मॉड्यूल्स पर यू नीड टू ट्रस्ट। देखो यार मार्केट में किताबें बहुत है, आप अभी में से कहोगे ना कि सर आपको फिजिक्स के लिए क्या उठाना है क्या नहीं उठाना, मतलब आपका दिमाग घूम जाएगा। मैं आपको इतनी सारी और बेस्ट रिसोर्सेज होंगे वो, ठीक, लेकिन हमें ये नहीं करना। आप ये कह रहे हो कि आप 2 साल से अपने मॉड्यूल्स कर रहे हो रेगुलरली कर रहे हो अपने मॉड्यूल्स, यस सर, बिल्कुल सर। तो बस उनके ऊपर फोकस अच्छे से कर यार। जब वो खत्म हो जाए ना जिस दिन, उस दिन ये बात सोचना मैं और क्या कर सकता हूँ अब। क्योंकि देखो अगर आप ये सोचो आज की डेट में आप सिंगेज, आपने अगर सिंगेज की बुक उठाकर देखी हो जो उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं, ठीक, आई कैन गारंटी यू आप उसको खत्म नहीं कर सकते। अब समय नहीं है इतना यार। अगर एक इंसान ड्रॉप भी मार दे, वो पूरी ड्रॉप में भी 1 साल में उन सारी किताबों को फिनिश कर पाना, इट्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। उनका लेवल भी अच्छा है और वो बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। नहीं अब तो इतने क्वेश्चंस करने ही नहीं बनते। आप जो भी मॉड्यूल कर रहे हो उसी को फॉलो करो, बहुत रिजिडली फॉलो करो, लोगों की बातों में मत आओ। देखो यार लोग आप लोगों को बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ, बट आप लोगों को जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं वो चीजें आपको सोचने की जरूरत है कि यार उन्होंने मुझे ये बात बोली है ना, आई नीड टू ट्रस्ट दिस पर्सन। मैंने 2 साल अपनी जिंदगी की इतने क्रूशियल इनको जब दे दिए, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा ट्रस्ट इन पे। वो मॉड्यूल्स अच्छे से फिनिश करो, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, गो फॉर द प्रीवियस ईयर्स। अगर आपको कोई और नए क्वेश्चन उठाने हैं, आई डेफिनेटली सजेस्ट यू गो फॉर द प्रीवियस ईयर्स। जेई के पिछले सालों के पेपर्स उठाओ, ठीक, थोड़े और अच्छा लेवल करना चाहते हो उनसे पहले के जो आईआईटी, जब आईआईटी हुआ करता था बिफोर 2013 इट वाज आईआईटी, ठीक, तो एआई ट्रिपल ई एंड आईआईटी, थोड़े से और अच्छा करना चाहते हो आईआईटी के क्वेश्चंस उठा लो। आईआईटी स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस जो होते थे देवर सिंगल आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपका फोकस अभी थोड़ा जेई मेन की तरफ ज्यादा है एज कंपेयर टू जेई एडवांस्ड, ठीक, क्योंकि जेई मेन आपका थोड़ा पहले है, अब उसके अंदर अपनी रैंक सिक्योर करने की कोशिश ज्यादा करो पहले। अगर वहां पर आप 98 99 परसेंटाइल खींच लेते हैं, देन यू विल बी इन अ कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट टू गो फॉर जेई एडवांस्ड, कंप्लीटली डिफरेंट। तो ये जो लास्ट का 3 एक महीने का जो समय अब आप लोगों के पास बचा है, दिसंबर हाफ हो चुका लगभग, मैं कह रहा हूँ अगर फरवरी एंड में भी मान लो पहला जेई का पेपर होता है, अप्रोक्सीमेटली यू हैव गॉट 2.5 मंथ्स, गो जस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर्स, ठीक। एंड जो आप मॉड्यूल्स कर रहे थे उन्हीं को रिवाइज करो, गलती से भी नई किताब मत उठाना, बहुत बुरे फंस जाओगे यार, गलती से भी। Thank you, sir. That was really very helpful, sir. ठीक, I was quite confused with this. Thank you. बिल्कुल गलती से भी यार, मतलब ये गलत काम इस टाइम पर मत करना। बुक्स जो कर रहे हो शुरुआत से, मैंने अभी आपको नोट्स भी बोले ना, वो नोट्स मैंने क्यों बोले, क्योंकि आप जो चीज कर चुके ना वो आपको रिपीट करने की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। आप ये सोचो आपके जो नोट्स है ना, आपको ये याद होना चाहिए सर इस पेज पर पढ़ते पढ़ते मैंने इधर स्क्रैच मारा था अपनी कॉपी में, वो मेरा पेज फट गया था। जो आपको ये ऐसी मेमोरी हो जानी चाहिए, वो कैसे होगी, बार बार पढ़कर, रीड इट अगेन, वो दिमाग में चीज सेट होगी। 100% सब आने से एवरी पर्सन इज नॉट गोइंग जस्ट फॉर 360 मार्क्स। मेरे को पहले 360 नहीं, मुझे पहले एक अच्छा कॉलेज चाहिए, 360 उसके बाद सोचूंगा मैं। ठीक है जी, चलिए, आई होप आई एम एबल टू आंसर यू। एनीवन एल्स इफ दे हैव एनी क्वेश्चन? यस सर। हाँ जी प्लीज। नेहल, आई गेस, ओ सॉरी सॉरी, आपका नाम थोड़ा छुप रहा है। हाँ जी, व्हाट इज योर नेम? यस सर। जी बताइए प्लीज। सर मैंने एक बीटेक के अलावा सर मैंने और भी चीज़ें देखी सर, तो मुझे बीटेक में ही मेहनत करते रहना चाहिए या फिर बाकी को भी देखना चाहिए? जैसे आप कुछ और बताइए, क्या चीज? जैसे कि सर डेटा साइंटिस्ट के लिए बैचलर और मास्टर्स करना होता है, तो सर उसमें भी देखना पड़े चाहिए या फिर बीटेक पे ही ध्यान दो? देखिए यार एक चीज मैं छोटी सी कहूंगा, देख ग्रेजुएशन जब भी आप करो ना, देखो डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ठीक, ये सब चीजें ना बहुत स्पेसिफिक स्ट्रीम्स हैं। अभी आपने ना इनके ऊपर काम नहीं करा, सो यू एक्चुअली डोंट नो कि हाउ मच कंफर्टेबल यू विल बी ओवर देयर। ठीक, आज की डेट में मुझे ये स्ट्रीम्स, भाई बच्चे कहते हैं सर बहुत इमर्जिंग स्ट्रीम्स है, सब कुछ है, हाँ है, एआई, डेटा साइंटिस्ट एंड एवरी अदर थिंग, दीज आर वेरी इमर्जिंग स्ट्रीम्स, बट क्या मैं उनके अंदर इतना कंफर्टेबल हो पाऊंगा? दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि यार ग्रेजुएशन थोड़ी सी जनरलाइज करो, बीटेक निकालो अच्छे कॉलेज से। डेटा साइंटिस्ट का अगर आप थोड़ा सा बड़ा सेट देखोगे तो बड़ा सेट उसका क्या आता है, तो उसका थोड़ा बड़ा सेट कंप्यूटर्स में आता है, आईटी, कंप्यूटर्स,
ठीक, तो थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करो कि मैं एक जनरलाइज्ड फील्ड पे जाऊं, हो सकता है वहां पर आपको 4 ऑप्शंस और दिख जाए जो इससे भी बेटर निकल कर आए आपके लिए। तब आपको ये भी पता चलेगा कि मैं अच्छा किस चीज में हूँ। अब मैंने यार 3 साल कोडिंग करने की, मतलब 3 भी नहीं कहूंगा, रादर 5-6 साल कोडिंग करने की बहुत कोशिश करी, नहीं हुई। रीजन, और भाई मेरे को टीचिंग लाइन में आना था, ठीक, वो मेरा फोटे था, मैं उसको सोच ही नहीं रहा था, मैं उसको जस्ट एज साइड बिजनेस लेके चल रहा था, आना मुझे यही था। तो बेसिकली क्या था वो पता कैसे चला सर, वो एक्सप्लोर करके पता चला। तो ये चीज आप लोगों ने सोचनी समझनी है कि हाँ अभी जनरलाइज्ड फॉर्म में बात करिए, ग्रेजुअली कम ऑन टू स्पेसिफिक थिंग्स। ठीक, तो अभी अपना 11th में हो 12th में हो? 11th में सर। 11th में यार बिल्कुल अपना 1.5 years झोंक डालो, एक अच्छा कॉलेज निकालो, वहां पर इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक, कि 10 चीजें और देखोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा यार मेरे साथ वाला बच्चा ये और अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, क्या मैं स्ट्रीम को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकता हूँ? वो 4 साल आप एक्सप्लोर करेंगे, वहां आप लोगों को आइडिया लगना शुरू होगा कि हाँ इज दिस स्ट्रीम गुड फॉर मी, या फिर सर मैं टेक्निकल के लिए बना ही नहीं था। फिर आप एमबीए के लिए भी सोच सकते हैं, ठीक, आप बाहर जाने के लिए भी, मतलब अब्रॉड जाने के लिए भी सोच सकते हैं, बट अपने आपको पहले वो अपॉर्चुनिटीज तो दो सर्च करने की। अभी तो हमने सिर्फ सुना है, वी हैवंट वर्कड ऑन इट। हाँ जी, बताइए जी। यस सर, थैंक यू सर। ठीक, चलिए जी। हाँ जी, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस? Excuse me, sir. जी बताइए जी। Sir, what do we need to do when such a thought arises कि मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे? देख, सबसे पहली इस चीज में 11th की हो 12th की हो? सर 11th 11th। 11th की हो, बढ़िया जी। ठीक, मैं ये इसलिए पूछता हूँ कि मुझे समय देखने की रिक्वायरमेंट है बच्चे के साथ कि वो कितना लगा सकता है। ठीक है, देखो यार, आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, आपको ऐसा लग रहा है उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, देखो सबसे पहली चीज, अभी आपने वो कंसेप्ट पढ़ा है, यू नीड टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, जब भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, क्वेश्चंस लगाइए, बट इस एक्सपेक्टेशन से नहीं कि मैंने कंसेप्ट पढ़ लिया तो सारे होने चाहिए, नहीं, you need to learn. This is JEE NEET, this is not basic CBSE। सीबीएसई के अंदर बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर आप थ्योरी पढ़ोगे तो क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, बट यहाँ पर इट्स एप्लीकेशन, प्योर एप्लीकेशन। जो एक बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा भी ना, वो थ्योरी बेस्ड जैसा होगा नहीं, वो कुछ ट्विस्ट के साथ होगा। तो इसलिए ना ये अभी बिल्कुल मत सोचो मैंने थ्योरी पढ़ ली सर, मैंने इस क्लास में पढ़ ली, सब कुछ पढ़ ली, तो आई एम स्टड, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, नहीं, इतनी इतनी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना उसमें अपने आप में। वेट करो, समय दो, क्वेश्चंस को देखो, अगर आप कर पा रहे हो गुड, नहीं कर पा रहे हो सॉल्यूशन देखो, टीचर्स से पूछो, जो मर्जी करो। एक बात हमने दिमाग में हमेशा बांध कर रखना, इफ यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, इफ यू कांट सॉल्व अ क्वेश्चन इट विल गिव यू नॉलेज। वो लेकर कुछ नहीं जाएगा तुमसे। सॉल्व क्वेश्चन, ज्यादा सॉल्व करो, जिस सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें ज्यादा तकलीफ लगती है ज्यादा क्वेश्चंस करो। ठीक, ये मत घबराओ, ये इससे मत घबराओ सर मैंने 100 क्वेश्चंस करे, मेरे को 80 नहीं हुए, मेरे को 20 हुए, मैंने कॉन्फिडेंस नहीं लूज करा। लेकिन जहां आपके पास ये आ जाएगी ना, वो 80 क्वेश्चंस आपको इतनी चीज सिखा के जा चुके कि अब अगर आप कहीं और से क्वेश्चंस करोगे, नाउ यू विल बी एबल टू डू इट। तो ऐसा होता है यार, कई बारी टॉपिक्स होते हैं जो दिमाग में एकदम क्लिक नहीं करते, समय लेते हैं, बट उसके लिए ना बाकी टॉपिक्स को हैम्पर मत करो। पहली बात, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में, मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि हम सर आईआईटी से नीचे तो बात ही नहीं करेंगे जी, रैंक 1, 2 भी नहीं चाहिए, 1 चाहिए, आएगी, बस एफर्ट लगाते चले जाओ। इसमें ढीला मत पड़ना कि सर क्वेश्चन नहीं हुए तो यार ये नहीं हो रहा, अरे ऐसे नहीं। अगर एक बैट्समैन का एक ओवर खराब जाता है, मेड इन जाता है, तो अगले ओवर में उसको कवर अप कर सकता है जी। ठीक है सर? Okay, thank you, sir. ठीक जी, हाँ जी, एनीवन एल्स? वी हैव गॉट 5-6 मिनट्स। एनीवन एल्स, इफ एनी क्वेश्चन एनीवन हैव? Okay, so I hope this session of 45 odd minutes or 1 hour is pretty much helpful to you guys, and I think मैं आप लोगों को कुछ दे पाया हूँ, और आपका समय मैंने बिल्कुल भी मतलब खराब करने की कोशिश ना करी हो। These claps are for you to listening to me for the last 1 hour, and thanks a lot for being such a nice audience. Hopefully this situation of COVID ends and we meet soon, and hope I see you all in some excellent colleges and doing excellent in lives. If any point of time I can be of any help to you, any help to you, just remember that we have a common intersection of DAV.
and that is much more than enough for us to have a chat and discuss some things in life. Fine. Ma'am,